हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। देखिए, तो अभी हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उसके बाद हम पैसेज रीड करेंगे। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं उसी पैटर्न पर चलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके वहाँ लिखे थे 32 से, लेकिन 32 से नहीं 27 से स्टार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन स्पेसिफिक मार्केट्स। स्पेसिफिक मार्केट में क्या मतलब किसकी ज़रूरत पड़ती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पैसेज ऑल्सो मैंशंस अबाउट द ट्रेंड ऑफ। अब जो पैसेज है वो किसके ट्रेंड के बारे में यहाँ पर बता रहा है? ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो के बारे में, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रीजनलाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द ऑथर ले स्ट्रेस ऑन इन द पैसेज। अब जो ऑथर है वो किस पर जो है वो स्ट्रेस डाल रहा है पैसेज में? इंटरनेशनल कॉमर्स पे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में, कैपिटल रिसोर्स मैनेजमेंट पे, या फिर नॉलेज ड्राइवन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज कि विच कंट्री इंजॉयड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर डिकेड्स? साउथ कोरिया, जापान, मैक्सिको एंड मलेशिया। This is why labor-based competitive advantages of India and Singapore cannot be sustained in IT and service sector। क्यों IT और सर्विस सेक्टर में जो इंडिया और सिंगापुर है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है लेबर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से? क्योंकि ड्यू टू डिमिनिशिंग लेवल ऑफ स्किल्स, या फिर ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मेकिंग इनरोड्स, या फिर बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, या फिर बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लेबर बेस्ड एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। So next question number 32 is how can an organization enjoy competitive advantage sustainable over time? Through regional capital flows, through regional interaction among business players, by making large banks, industries and markets coalesced, या फिर by effective use of various instrumentalities। ठीक है, तो नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, यूटिलिटी, सिक्रेसी, रिजोनेंस, डिसेप्शन, डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंस एंड डेविएंस। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना पैसेज पढ़ना, फिर हम क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए, it is in terms of labor for decades the relatively low cost and high quality of Japanese workers conferred considerable competitive advantage across numerous durable goods and consumer electronic industries. Example, machinery, automobiles, televisions, radios. Then labor based advantages shifted to South Korea, then to Malaysia, Mexico and other nations. Today, China appears to be capitalizing based on the basic of labor. Japanese firms still remain competitive in markets for such durable goods, electronics and other products, but the labor force is no longer sufficient for competitive advantage over manufacture in other industrializing nations. Such shifting of labor-based advantage is clearly not limited to manufacturing industries. Today, a huge number of IT and service jobs are moving from Europe and North America to India, Singapore, and like countries with relatively well-educated, low-cost workforce possessing technical skills. However, as educational level and technical skill continue to rise in other countries, India, Singapore, and like nations enjoying labor-based competitive advantage today are likely to find such advantage cannot be sustained through emergence of new competitions. In terms of capital, for centuries, the days of gold coin and later even paper money restricted financial flows. Subsequently, regional concentration were formed where large bank industries and markets collapsed. But today, capital flows internationally at rapid speed. Global commerce no longer requires regional interactions among business players. Regional capital concentrations in places such as New York, London and Tokyo still persist, of course, but the capital concentrated there is no longer sufficient for competitive advantage over other capitalists distributed worldwide. Only if an organization is able to combine, integrate and apply its resources, example land, labor, capital, IT, in an effective manner that is not readily imitable by competitors, can such as organization enjoy competitive advantage sustainable over time.
In a knowledge-based theory of the film, this idea is extended to view organizational knowledge as records with at least the same level of power and importance as the traditional economic inputs. An organization with superior knowledges can achieve competitive advantage in such markets that appreciate the application of such knowledge. Semiconductors, genetic engineering, pharmaceutical, software, military warfare, and like knowledge-intensive competitive arenas provide both time-proven and current example. Consider semiconductors example, computer chips which are made principles of sand and common metals. These ubiquitous and powerful electronic devices are designed within common office buildings using commercial available tools and fabricated with factories in many industrialized nations. Hence, land is not the key competitive resource in the semiconductor industries. So the first answer for this question is option number C, that is superior knowledge. Next, option number A, global financial flow. Next, question number D, knowledge driven competitive advantage. नेक्स्ट इज कंट्री की अगर हम बात करें तो इट इज़ जापान. एंड लेबर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो रहा था इंडिया और सिंगापुर का, उसको कैसे सस्टेन हो रहा था आईटी एंड सर्विस सेक्टर में. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैसेज कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल ओवर टाइम. एंड इट इज़ नन अदर दैन बाय इफेक्टिव यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंटलाइज. ओके गाइस, तो चलिए अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे. एंड दिस क्वेश्चन इज कि जो चॉइस होती है कम्युनिकेशन पार्टनर्स की, उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं किस फैक्टर के थ्रू? प्रॉक्सिमिटी के थ्रू, यूटिलिटी लोनलीनेस के थ्रू, या फिर यूटिलिटी सिक्रेसी डिसोनेंस. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी चॉइस है कम्युनिकेशन पार्टनर्स की जिसका प्रभाव पड़ता है जिन फैक्टर्स का. तो यहाँ प्रभाव पड़ता है आपके प्रॉक्सिमिटी का, यूटिलिटी का और लोनलीनेस का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. अब क्लासरूम में अगर आप टीचर हो तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है जिससे कि आप अपनी इफेक्टिव प्रेजेंस को वहाँ पर दर्शा सको एक क्लासरूम में. तो क्या करना होगा आपको? पीयर पर कमांड करनी होगी, ठीक है, या फिर मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, या फिर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स बोलेंगे गुस्से वाली, ठीक है, या फिर अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर, या फिर आपको एक वेल एस्टैब्लिश पोस्चर लेना होगा. मतलब आपको एक ऐसी पोजीशन में खड़ा होना होगा, इस पोज के साथ खड़ा होना होगा कि आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस वहाँ दिखाई दे, या फिर आप बीइंग अथॉरिटेरियन. तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप एक टीचर हो और आपको अपनी क्लास में अपनी इफेक्टिव प्रेजेंस दिखानी हो, तो बिल्कुल आपको वहाँ पर एक इफेक्टिव पोस्चर रखना होगा, ठीक है. यानी कि आपको ऐसे पोज में खड़ा होना होगा कि स्टूडेंट्स क्या हो, आपसे अट्रैक्ट हो. ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए थके हुए हैं, झुके हुए हैं, या फिर कुछ इस तरह से ही खड़े हुए हैं कि बच्चों को आप पे हंसी है. एक आपका पोडियम रखा है, इस पोडियम पे आपको अपने दोनों हैंड सेट करने हैं और इस तरह से खड़ा होना है कि आपका जो पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस है वो बच्चों पर पड़े, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा, एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस. जो भी कम्युनिकेटर होता है उसको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है? मैनिपुलेटेड इमोशंस को, या फिर एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट को, या फिर होमोफाइल्स के इशूज़ को, या फिर स्टेटस डिसलोकेशन को. सो ये द करेक्ट आंसर दैट इज़ एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट. कि कभी कभी कोई ऐसा एक्साइटमेंट होता है उस पर उसको जो है वो एक्सपीरियंस उसको होता है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट टाइम इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, ये मान लीजिए, इमेजिन करना है. तो वे पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, जहाँ पर जो लोग हैं वो इक्वल स्टेटस के हैं. तो आप कौन सा मेथड जो है कम्युनिकेशन का यहाँ पर बेस्ट सूटेड रहेगा या नॉर्मली एम्प्लॉयड के लिए इन सच अ कंटेक्स्ट? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, कॉर्पोरेट, या फिर क्रॉस? एंड द राइट आंसर गोज विद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. Next is identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom.
अब यहाँ पर आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एक टीचर को लेना चाहिए जब वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हो। तो वो प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करे, या फिर उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, या फिर रिपीटेटिव पॉज, या फिर फिक्स्ड पॉस्चर। सो द राइट आंसर दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। उसके जो वॉइस का मॉड्यूल है वो उसमें क्या होना चाहिए, मॉड्यूलेशन होना चाहिए, चेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। मॉरलाइजिंग आता है, वीक जजमेंटल आता है, कमेंट्स ऑन कंसोलेशन आता है, या फिर डायलॉग समरी और सेल्फ रिव्यू आते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स का यूज़, कूल रिएक्शन, या फिर डिफेंसिव एटीट्यूड, या फिर पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट या सिंपल नरेशन आएगा। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कम्युनिकेशन। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोगों के किसी का एग्जाम कल ही होगा तो उनको बस जल्दी जल्दी आंसर देखना है। तो बस हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और आंसर मार्क करेंगे। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि एक इंसान है 10 मीटर फ्रंट में जा रहा है, 10 मीटर अपने राइट में जा रहा है, और हर टाइम वो क्या करता है, अपनी लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, 5, 15 और 15 मीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके थ्रू आप जल्दी से समझ जाएंगे। आपको देखना है, आपका ये आपको पहले से ही पता है, ये क्या है आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो आपको पता है नॉर्थ ऊपर की तरफ है। अब हम यही मान लेते हैं कि वो अपना उसका एक इनिशियल पॉइंट हम लेते हैं, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। अब ये यहाँ से अपने फ्रंट की तरफ जा रहा है, हम इसको इधर को मान लेते हैं, नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है, कितना गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस तरह से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या हुआ, उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और वह अपने ऊपर की तरफ बढ़ा। ठीक है, ये हमने ए मान लिया इस पोजीशन को। कितना चला 10 मीटर। अब अपनी राइट की तरफ मुड़ता है, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर होगा, तो राइट की तरफ मुड़ा और यहाँ पे आपका 10 मीटर चला गया। फिर 5 मीटर चला लेफ्ट मुड़ के, ठीक है, ये बी माना हमने, इसको हमने सी मान लिया। इधर जो था वो 15 मीटर चला, अभी बोला ना 15 मीटर, इसको हमने डी माना। अब अगेन 15 मीटर चला तो हम ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये 5 है, ये बचा हुआ जो नीचे का ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ई मान लेते हैं, और ये भी यहाँ से कहीं से शुरू किया था, तो यहाँ से मान लेते हैं शुरू कर, क्योंकि हमें बराबर देना था ना, इसलिए। तो ई और एस, ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमें बताना है कि क्या होगा। इस तरह का अभी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वो आप देख लीजिए, थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा समझना या वो होगा, तो आप ऐसे करके मान लीजिए कि हम इसको भी नीचे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये 5 था, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्लियर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ओ डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका डायग्राम है, मैं इसको एक बार स्टार्ट ही कर देती हूँ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, ओ डैश सी इज इक्वल्स टू रहेगा आपका डी ई एंड 15 मीटर। मैंने डायग्राम रेस कर दिया, मैं फिर से ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। वहाँ पर जो हमारा इस टाइप का पोजीशन थी ना, इस टाइप की, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को जो है यहाँ इसको हम मान लेंगे आपका के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब इसको के मानेंगे तो ये हमारा डी के हो जाएगा। ठीक है, तो हम चल रहे हैं ओ डैश सी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू है 15 मीटर। फिर जो हमारा के सी अपने के माना था ना, मैं बताया मैंने वहाँ से, तो वहाँ से आपका जो के सी रहेगा वो आपके ए बी के बराबर रहेगा, और ये हो जाएगा 10 मीटर। सी डी जो है आपका वो 15 मीटर हो जाएगा, और जो डी के है वो आपका सी डी माइनस के सी से आप डी के निकाल लोगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर, और डी के जो है वही आपका एस ई के बराबर है ना। डी के अभी हमने यहाँ पे के पॉइंट माना था ना, ऐसे करके डी और के, तो यही आपका एस सी के बराबर है। तो अगर ये 5 मीटर है तो आपका एस सी भी जो है 5 मीटर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ सिस्टर ऑफ बी। बी की जो सिस्टर है, ए जो है वो सिस्टर है बी की। ठीक है, तो आप नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम ए जो है वो सिस्टर है बी के, यानी कि ए और बी भाई बहन है, और हमें ए का जेंडर पता है, सिस्टर का है। दूसरा आ गया कि जो एफ है वो डॉटर है जी की,
F जो है वो G की डॉटर है, तो ये एक अलग बात हो जाती है। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि जो C है वो B की मदर है, तो हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पर C लिख देंगे और ये क्या है आपकी B की मदर है। अब आप देखिए जब ये B की मदर है तो बिल्कुल क्लियर है ये A की भी मदर होगी, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा होगा ऊपर तक नहीं जाएगा। ये देखो यहाँ से C मान लो, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर गया C, ये भी आपकी मदर है। अब D जो है वो फादर है C का, यानी कि फिर से एक पीढ़ी ऊपर जाना है और ये आपके फादर हो गए D C के। अब E जो है वो मदर है D के, यानी कि एक और ऊपर जाएंगे, अब E आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इतना ऊपर जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि A जो है वो D से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। तो आप याद रख लो कि जब C B की मम्मा है तो A की मम्मा भी होगी, ठीक है। और मम्मा के फादर कौन होते हैं, नाना हो गए इनके, तो ये D से कैसे A कैसे रिलेटेड है, तो ये A जो है ये D की कौन है, ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट इन द सीरीज A B E D C F G H I क्या रहेगा, तो अब आप देख लेंगे यहाँ पर A B, फिर आप देखो उल्टा हो रहा है C D E, ठीक है। तो अब F G H I अब सीधा हो रहा है, तो अब हम फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा G I F G H I J K L, यही होगा ना J K L, तो क्या आ जाएगा L J K L और M N, क्योंकि यहाँ पर O दिया है, ठीक है, तो हमें M N तक चलना है, तो क्या हो जाएगा आपका M N O O O N, यानी कि हो जाएगा N M और L K J, यही हो जाएगा ना, और ये हमारा यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि among the following propositions two are related in such a way that one is the denial of the other, and which are those propositions, select the correct code। तो propositions है all women are equal to men, some women are equal to men, some women are not equal to men, and no women are equal to men। and the correct answer for this question goes with statement A and statement C, ठीक है, and it is here in option number D। नेक्स्ट इन सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज दिस, तो अब आप इसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स देख लीजिए। S यानी कि उल्टा चल रहा है, S के यहाँ पर क्या आ रहा है आपका R जो है वो मिस है, T Q R S T, तो ये Q आ रहा है, ठीक है, यानी कि बीच में आपको एक मिसिंग करनी है, तो वो आप यहाँ से देख लीजिए। अमेरिकन्स जो है तो यहाँ पर आप किसको मिस कर दोगे, Z को मिस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका Y आ जाएगा। अब Y आ रहा है तो आप इस Q को और इस B को हटा दीजिए, अभी दो बचेंगे, ठीक है। M से चला तो M से पहले क्या आता है आपका L M, तो J K L M, तो L यहाँ मिस हो जाएगा और K जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपका देख लीजिए K इसमें आ रहा है तो यही आपका सही है, बाकी आप इसको मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द सीरीज 3, 11, 23, 39, 59 अगली टर्म क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 3 और 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका डिफरेंस है 8 का। आप जब +8 करोगे 3 में तो 11 आ जाएगा। फिर आपको 23 तक पहुंचना है और इस 8 में फिर आप कितना ऐड करोगे, तो आप 12 ऐड करोगे तो 23 पे पहुंचोगे। फिर 23 से 39 में पहुंचने के लिए आपको 16 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे ही 39 से आपको 20 ऐड करने पड़ेंगे तब आप 59 में पहुंचोगे। फिर 59 से आगे आपको फिर से कितने ऐड करने पड़ेंगे, अब आप ये पैटर्न देख लो, 8, 12, 16, 20 काउंट टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 20, यानी कि 4 के जो है ये मल्टीपल्स हैं, तो आपको 20 के बाद क्या आएगा 24 आएगा, यानी कि 59 में आपको 24 जो है वह ऐड करना है। तो 10, 11, 12, 13 एंड 5 2 is 7 and 1 8, दैट इज 83। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी A एंड B। तो देखिए ये थोड़ी इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 रेलवे टिकट्स हैं आपके सिटी A से और B में 3 टिकट्स हैं आपके सिटी A से C में, जिसकी कॉस्ट जो है 177 है। तो 3 टिकट्स जो लिए गए A to B और 2 टिकट्स जो लिए गए A to C वो 173 है। तो आपको फेयर बताना है सिटी B का सिटी A से,
ठीक है। तो हम इसका जो फेयर है सिटी बी का सिटी ए से जो फेयर है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और y हम मान लेते हैं सिटी सी से सिटी ए का, सिटी सी का सिटी ए से, ठीक है। तो x और y हमने मान लिए। तो अब हम एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 177। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी आएगी आपकी 3x प्लस 2y एंड इज इक्वल्स टू 173। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ये दोनों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, और जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका आंसर क्या आएगा ये आपको करना है, उसका सॉल्व आप खुद करेंगे। आंसर जो आएगा आपका दैट इज y is equals to 37 and x is equals to 33 and the correct answer is 33। नेक्स्ट है आपको कोड बताना है जो कि करेक्ट है नहीं है इस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का 2 प्रेमिसेस हैं। देखो तो एन आर्ग्यूमेंट विद 1 ट्रू प्रेमिसेस 1 फॉल्स प्रेमिसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन मे बी वैलिड, या एन आर्ग्यूमेंट विद 2 ट्रू प्रेमिसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन मे बी वैलिड, या फिर एन आर्ग्यूमेंट विद 1 ट्रू प्रेमिसेस 1 फॉल्स प्रेमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन मे बी वैलिड, या फिर एन आर्ग्यूमेंट विद 2 फॉल्स प्रेमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन मे बी वैलिड। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो एक आर्ग्यूमेंट जिसके 2 प्रेमिसेस सही हो और एक गलत कंक्लूजन हो वो वैलिड होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हैं 2 प्रेमिसेस और 4 कंक्लूजन्स। आपको इनमें से कोड सिलेक्ट करना है जो कि वैलिडली ड्रॉन हो। ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, राम इज अ रिलीजियस पर्सन। कंक्लूजन है कि राम इज इमोशनल, ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस, राम इज नॉट नॉन रिलीजियस पर्सन, सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल। एंड कोड यहाँ पर प्रोवाइडेड है, लेकिन इससे पहले हमें इसका देखना है कि क्या सही जाएगा। तो दैट इज राम इज इमोशनल एंड राम इज नॉट a non-religious person. A and C is the correct and it is here in option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अगर जो प्रपोजिशंस है आपका कि ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी क्लेम सर्टेनली टू बी ट्रू, कि सम थीव्स आर पुअर, सम थीव्स आर नॉट पुअर, नो थीव इज पुअर है, नो पुअर पर्सन इज अ थीव। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सम थीव्स आर नॉट पुअर। Next question number 49. Consider the following statement and select the correct code stating the nature of the argument involved in it. To suppose that the earth is the only populated world in the infinite space is as absurd as to assert that in an entire field of millet only 1 grain will grow. The options are astronomical, anthropological, deductive and analogical, and the right answer goes with option number E, that is analogical। क्वेश्चन नंबर 50 इज आपको कोड सेलेक्ट करना है कि जो भी आपके वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत है। तो क्योंकि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है प्रपोजिशंस को और क्लासेस को, और ये आपको प्रोवाइड करता है क्लियर मेथड नोटेशन का। ये आपका इधर वैलिड होता है इनवैलिड होता है। ये आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्ट मेथड टेस्ट वैलिडिटी को टेस्ट करने का। तो आपको पता ही है वेन डायग्राम आपका क्या है। तो जो हमारा गलत यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है तो वो आपका क्या करेक्ट नहीं है कि या तो आपका ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। अब ये आपके टेबल पे बेस्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको आंसर बता दूंगी और आपको इस अकॉर्डिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग जो टेबल है आपको ये परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो शो कर रही है जो कि 2 कंपनीज ने अर्न किया है, ए और बी ने 2011 से 15 ईयर्स तक। तो आपको इसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर करना है। प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनीज तो ये रहेगा ईयर 2011 में ए ने 20 और 20% किया था, बी ने 30%, 12 में 35% ए ने किया था, 40% बी ने किया था। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बारी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा आई होप। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का, आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट फॉर्मूले से आप आंसर्स जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 2 ईयर कंपनीज वॉज रुपीज़ of the 2 companies was rupees 9 lakh in the year 2012 and the expenditure of A and B were in the ratio 2:1, then what was the income of the company A in that year? And the right answer is rupees 8.1 lakh. What is the average percentage profit earned by the company B? And the right answer 38%.
In which year the percentage profit earned by the company B is less than that of company A? And the right answer is option number B. अब नेक्स्ट टेबल है आपकी, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं डिफरेंट एज ग्रुप के यहाँ पर शो किए गए हैं, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक सर्वे के लिए, ठीक है, अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और आंसर करना है क्वेश्चन का। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जस्ट तक हमने कर लिया था, अब ब्लू से लेकर आप कर लो एक बार, हो गया। अब क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 21 to 30 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25%. Approximately what percentage of the total sample indicates that hip hop is their favorite style of music, and it is option number D, that is 12%. Next is, what percentage of respondents age 31 plus indicated a favorite style other than classical music, and it is option number C, that is 75%. Next is, an unsolicited email message sent to many recipients at once is A. एक ही बार में एक अनसोलिसिटेड ईमेल जो है वो सबको भेजा जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, तो सभी को पता है, नन अदर देन स्पैम, है ना। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट द स्टडी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी ICT, एंड इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी IDT, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, एंड राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज information technology IT. Next is, if the binary equivalent of the decimal number 48 is this, then the binary equivalent of the decimal number 51 is, and the right answer goes with option number A. And next is, the process of copying files to a CD-ROM is known as, CD-ROM तक जो प्रोसेस होती है, मतलब CD-ROM पर फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।